there as one of the chief architects of green revolution. Although the technology is mostly imported, हमने ज़्यादातर technology import की है, but the replication of that is thanks to MS Swaminathan, who is no more with us. So that is why it becomes a bit important for you in the coming up exams. You might see a question either on the man himself or on the work that he has done. So since most of you have gone through it, हम इसे revision की तरह लेते हैं, ठीक है? Let us take this as a revision and start with green revolution as such. Now green revolution, you all know, again no sound. आवाज नहीं आ रही है? Is there no? No sound? आ रहा है ना? ठीक है? I think Hilal just try and refresh it. Yes, it is now visible and audible to you guys. I hope this is okay. Green revolution came and you were seeing that why. So as I was telling you, the time period of late 60s, particularly after 65, we had what we used to call as ship to mouth existence. हम बार-बार ये word use करते थे. इंडिया के बारे में derogatory word use किया जाता था that India is going everywhere with a begging bowl. कि इंडिया अगर डिप्लोमेसी करता था या इंडिया किसी दूसरे कंट्री के साथ bilateral relationship में जाते थे हम. So we used to do trade, grain trade, etc. We used to call for trading of grains, or sometimes we used to just keep on asking for concessions with respect to our food. Import of food was going a lot. So हम बार-बार ये कहते थे that we had what you call as ship to mouth existence. What do you mean by this? Ship to mouth existence हम बार-बार कहते थे that this is what India is gearing for. That हमारी conditions most of the time was such that import होकर जब तक ships हमारे ports पर नहीं आते थे तब तक there was a large scale inflation of food products काफ़ी inflated हुआ करते थे. And we used to see it in newspapers. उस ज़माने के अगर newspapers में आप देखेंगे तो वहाँ पे headlines आते थे कि फलाना शिप जो है this much ton food grain के साथ जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है, कलकत्ता में पहुँच चुकी है, मद्रास के पोर्ट में पहुँच चुकी है, बॉम्बे पोर्ट पर पहुँच चुकी है, so on and so forth. So we had this serious problem of food security. That was one problem. दूसरी problem ये थी that our agriculture was not heavily intensive towards having what you call as the modern seams or the modern means of irrigation. हम ज़्यादातर rain fed crops पे ही जिंदा रहते थे. अगर मैं example दूँ कि even at today, at this point of time, if I ask you that what is the percentage of India's cropping area which is rain fed and which has irrigation, particularly man-made irrigation on. So what do you think is the percentage? क्या percentage है which we have artificial irrigation coming up and which is rain fed irrigation? Can anybody guess कि क्या percentage है हमारे पास आज भी at this point of time as we speak in 2023? Anybody, any guesses? Yes, please. You all have done agriculture and these are some important facts that you need to keep on handy. अगर कुछ facts हैं आपके पास कुछ handy तो आप answers फटाफट इसी हिसाब से लिख सकते हैं. The idea is around 63% of our total agricultural food crops is now under irrigation. ठीक है? Remaining 30, 33, 39% के आसपास में we understand that it is rain fed. So still we are not able to bridge that gap. लेकिन you can pat your bags saying that कि ठीक है more than 50% of our agricultural particularly cropped area is under artificial irrigation at this point of time. This was exactly ulta. ये पूरा का पूरा उल्टा था. Most of our agricultural cropped areas were under rain-fed mechanism, and that we depended heavily on monsoon. So आज भी we say that monsoon does affect the inflation pattern in India because of that 40% odd group of our productions that that is still dependent on rain-fed agriculture. So that creates a huge disbalance. But green revolution changed everything in that aspect. Green revolution से 2 या 3 industries या 2 या 3 patterns ऐसे खुले that we from the point of food importers, we became what you call as food exporters. Today, our basmati crops, today our cotton cultivation, and today most of our food grain cultivation, food products, particularly the processed food products. India is a leader in that. हम अपने आप में we set up some benchmarks in agricultural economy, agricultural export of the world. We are an important part of the supply chain management, right? How is this possible and how was that happening? That was happening thanks to your green revolution that set the stage. Today we are not in the stage of green revolution. हम green revolution के stage पे नहीं हैं. हम आज green revolution के side effects से ज़्यादा प्रभावित हैं. But we will come to first see green revolution. What is that? Now, mostly there was a person known as Norman Borlaug, जिनके बारे में आप आगे पढ़ेंगे. With the help of Norman Borlaug and Swami Vishwanathan, we have MS Swaminathan, I beg your pardon, MS Swaminathan. We had the coming up of what you call as some transplantation of paddy seeds from Mexico. If you look at where is Mexico, that is again in the tropic belts of Americas. Almost the same environment, almost the same geography. हालांकि it's also a peninsular region which is covered on 2 sides by water. So is India on all the 3 sides of water. But अगर आप Mexico की geography देखें और उसके even particularly developmental background देखें, it very much mirrors to what is in India. So we transplanted some paddy seeds. वहाँ से कुछ paddy seeds हमने copy किए, कुछ wheat variety, high yielding short variety of wheats हमने copy किए, and we took these 2 crops and try to make it and try to transplant it in Indian fields, particularly in the fields of Punjab in the northwestern area, and on the fields some parts of Bengal Bihar belt. Now what are those parts and what is those experiments? ठीक है? We have what you call as high yielding variety of seeds. ठीक है? Now high yielding variety of seeds were hybridized seeds. ठीक है? ये कुछ hybridized seeds हुआ करते थे, which we did not develop. Many students get confused that we developed through what you call as gene genetics. कि हम लोग ने gene genetics करके develop किया. That is not what it is. GM crop, okay, या what you call as genetic based crops in जहाँ पर genes के level पे या अगर आप कह सकते हैं so at the level of your DNA we had some tweaking here and there done. So that is different. For example, GM variety crops at today present we have cotton and the trial is going on mustard and brinjal as we speak. So बहुत कम variety of crops हैं genetically modified variety of crops. That is different. This is not genetic modification. This is just, if I would say,
द कमिंग अप ऑफ टू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स. अगर एक वेराइटी ऑफ क्रॉप जो है हाइट देता है और मान लीजिए दूसरा वेराइटी ऑफ क्रॉप्स excessive grain deta hai, so you would transplant them, you will have what you call as taking both the crops, making a hybrid of it, and then a third generation crop will be coming up. This is called as hybridized variety of crop. This is not GM variety of crops. ठीक है, अभी recently environment ministry की GEAC committee जो होती है, genetically modified variety of crops को permission देने वाली committee जो होती है, that has given permission for some extent to mustard. So we are just now going towards edible variety of crop. So that is genetic modification. Nobody will confuse genetic modification with HYV, that is hybridized high yielding variety of crop. This is different. At that point of time we did not have genetic modification technology so much. So HYV varieties of seed in green revolution required some prerequisites. इसके लिए कुछ prerequisites चाहिए थे हमारे पास. Number one, as I told you, irrigation. Large scale variety of irrigation हमें चाहिए थे, so we needed dams and we needed irrigation bunds. That we started constructing a lot of dams, we started constructing a lot of irrigation bunds. And the second thing we needed was the coming up of high, very high inputs of fertilizers. So we needed pesticides and fertilizers so that we can supplement the crop. जितना हो सकता है उस crop को supplement किया जाना चाहिए with new seeds, with new varieties of pesticides and fertilizers. So we started coming up with what you call for the first time NPK variety of fertilizers. ठीक है, हालांकि NPK was needed before also, but now अब हम crops को fortify करना शुरू कर रहे थे. ठीक है, so we started fortifying the crops in nitrogen, potash with different if I would say ratio. ठीक है, mostly NPK का ratio जो होता है वो 4:2:1 होता है mostly, but this is abused at this point of time in India. ठीक है, तो इंडिया में अब although we have many fortification, for example neem coated urea मिल रहा है, which is a very important source of nitrogen. We had started giving subsidies to the fertilizer providing industries a lot. Even today that subsidies is given in the power sector, subsidies given in the distribution and the retail sector, subsidies also given to the farmers, subsidies also given to the fertilizer manufacturing industries. और ज़्यादातर fertilizer manufacturing industries आज भी government based industries हैं. हम ज़्यादातर fertilizers अब import कर रहे हैं rather than making it on our own. We have not given that much access to the private companies as far as fertilizer manufacturing is concerned. ठीक है, some of you are saying sir nano fertilizers are also coming up. This is an evolving area. अभी हम लोगों ने perfect उसे नहीं किया है. Nano fertilizer is still an evolving area. In fact, the whole of nano industries is an evolving area. So anyways, as I told you, there were two other pillars of green revolution. So hybridized variety of seed होनी चाहिए. That was being coming up. Example is Norman Borlaug's research and MS Swaminathan's work with respect to our paddy and some wheat, short yielding varieties of wheat. दूसरा irrigation and third fertilizers. On the basis of these three, we started with what you call as green revolution. Second thing that you should understand that green revolution was not an all India based project. ये पूरा all India based project नहीं था. We chose some areas, some dedicated areas where this would go on a very high note. Okay? So we started with the help of the IARI Institute, that is the institute which is with Ministry of Agriculture at this point of time, and that institute chose some areas जहाँ पे green revolution जो है ज़्यादातर यूज हो. आप सब लोग पंजाब को इसके सबसे ज़्यादा जानते हैं, but not just Punjab, but some areas of Bengal, some areas of the present day Tamil Nadu, and some areas of Uttar Pradesh were taken up, and there a huge scale what you call as green revolution started up. Now, technological base इतनी नहीं थी, but we must understand that the reason or the background for it was basically our food independence or food security that we should get. एक law हुआ करता था US में PL 480 law, जिसके तहत US हमें export किया करता था wheat products, particularly wheat grains, etc. It was said that the wheat grains which was given to India by US PL 480 law was so bad that it was fit for the fodder of the animals की animals के खाने के लायक वो wheat हुआ करती थी, and that humiliated India for a long period of time. So what I used to tell you in the starting of the lectures is ship to mouth existence हुआ करती थी. That was the idea of the starting of the genesis of green revolution. And not to forget, we had just gone through some wars. मैंने आपको बताया कि 65 के बाद green revolution का आना बहुत important बन गया. I don't know how many of you remember, but for example, you must have heard about the slogans of Lal Bahadur Shastri when he used to say Jai Jawan Jai Kisan. So Jai Jawan is for taking and boosting the morale of soldiers who are fighting on war, but at the same point of time the soldiers who are fighting at home, they became our farmers. Sometime after that, it was added by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee when he said that Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan. So, shifting towards science. And then I think in the first term of Modi government, he added something called as Jai Anusandhan. So, research. So, Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan, and now it is Jai Anusandhan, and it keeps on going on. So, you can put up a guess there. But anyways, the farming sector started up on a huge, if I would say on a huge level, what you call as intensive agricultural district programs. That shifted to what you call as hybrid variety, high yielding variety programs in 1965-66, and that is the basis of your green revolution. So irrigation facilities सबसे must होनी चाहिए, high yielding varieties सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, institutions, for example IARI मैंने आपको institutions बताया. Farming mechanization was not done that much, commercialization of agriculture was still not done that much. This agriculture was for sustenance, तो sustenance के लिए agriculture की जा रही थी, so that food products के दाम कम हो जाए, import dependency ना हो. All this will come in the second generation. Agricultural, rural credit, microfinancing credit, etc. started coming up with green revolution. ठीक है, तो ये सबसे पहले हो रहा है. The regions which I told you, Punjab, Haryana, Western UP, and some parts particularly going towards Bengal. That was in the first part. The second phase saw its extension in south of India, particularly Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra. And the third phase, the most slow phase of green revolution, जब ज़्यादातर
green revolution fizzle out हो चुका था. That is where you saw the coming up of green revolution in Madhya Pradesh, in Odisha, in some parts of West Bengal and Rajasthan. Okay, so these were some of the phases through which green revolution went through. सबसे ज़्यादा दो चीज़ों पर क्वेश्चंस आते हैं. One is the impact. What is the positive impact and what is the negative impact? Positive impact ये रहा most of the times that food grain productivity at the first stage of the green revolution was bumper. It was very high. हम दो products में self sufficient हो चुके थे. One was wheat and the other was rice. Those were two very important things. And in the third phase of revolution, when revolution reached in the areas of Madhya Pradesh, then we became sufficient in pulses. तो तब हम जाके pulses में sufficient हुए. Okay. But the food grain productivity, we became a self sufficient economy and we started exporting food grain. US पे dependence खत्म हो चुका था. Agricultural growth rate was increasing. For example, after this, agriculture started contributing to almost more than 50% of employment generation, and at the same point of time it started contributing massively to our GDPs. Everything was geared up towards agriculture. For example, अब जाके हमने एम्प्लॉयमेंट में और ग्रोथ रेट में दोनों में एग्रीकल्चर को 40% के आसपास रखा है. बल्कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फ्रॉम 1967-68 टिल द टाइम पीरियड ऑफ अर्ली 2000 2004 5 6 वी हैड 50% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन the sector of employment as well as in generation of GDP. In both of these senses, 50% से ज़्यादा agriculture या primary productivity जिसको कहते हैं primary sector participation सबसे ज़्यादा हुआ करता था. So that is the most important contribution or if I would say achievements of green revolution. Commercial farming इसकी वजह से शुरू हो गई थी. सबसे पहले first stage of green revolution is only for subsistence farming, but second stage of green revolution is for commercial farming. Okay, generation of employment, demand, decreasing poverty, these are all if I would say domino effects of positives of green revolution. कि ये सब green revolution के साथ शुरू हो ही रहे थे. But the earlier two are the most important one, that agricultural growth rate India में सबसे ज़्यादा बढ़ता है. But the negative impact nowadays outgrows the positive impact of green revolution. जितना green revolution का positive impact नहीं रहा है, अब उससे ज़्यादा negative हो चला है. And I'm talking, and mostly you will see topics here from the point of view of environment, from the point of view of geographical distribution of food crops. तो हमारे food crops geographically कहाँ distributed हो गए हैं इसकी वजह से environment पे इसका क्या असर पड़ रहा है. Green revolution अब उसके लिए ज़्यादा जाना जाता है. सबसे पहली चीज़, green revolution monocropping promote कर रहा था या आज भी कर रहा है. For example, major crops जो दूसरे commercial crops थे जैसे cotton हो गया, jute हो गया, tea हो गया, sugarcane हो गया, you all have done modern India, history of modern India. Were we known for exporting wheat? Were we known for exporting rice? Or we were known for exporting other products like silk, cotton, jute, opium, indigo, etc. Right? We were known for others. But हुआ क्या? Commercially, like we had to choose on both the sides, and this is very normal. हमें या तो अपनी रोटी पानी देखनी थी या तो हमें business देखना था, right? Spices as well we were exporting. But जब आपकी food security के ऊपर question हो, food security ही compromised हो, then of course you can't do anything. You have to look out of the box and solve that question first. So we did choose what you call as subsistence over growth as far as green revolution is concerned. तो monocropping उसी चीज को बताती है कि आपने subsistence economy को जन्म दे दिया, not commercial economy. For example, if I tell you MSP मिलता है, right? MSP is there. Now let's suppose अगर wheat के लिए और rice के लिए MSP है, so उस product का उस agricultural product का market value क्या रह जाएगा? Market में कोई value रहती है ऐसे product की जो चीजें MSP पे मिल रही हो, ठीक है? At the same point of time जिसे राशन में बांटा जा रहा हो, do you think people go on to buy rice? और या राइस इतना महंगा है या सस्ता है कि क्या है? What is the condition of rice? If I just tell you to look out in the Indian market, except for basmati rice, right? Rest all the varieties of rice, basmati rice is not covered in MSP by the way. तो basmati rice का वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज्यादा दाम है और इंडिया उसमें लीडर है. इंडिया इज अ लीडर. बट मजे की बात यह है दैट हम बासमती राइस नहीं खा रहे हैं. The Indian population is not eating it. We are exporting it. It is almost a captive export system that is happening. सबसे ज़्यादा captive marketing या captive farming चलती है, यानी कि भैया 50 एकड़ में 100 एकड़ में बासमती राइस प्लांट कर दिया है, वो पहले से ही किसी कंपनी के साथ टाई अप है, and it will directly go to export houses. That is the amount and it sells a lot. For example, जिस भी चीज़ के लिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है मार्केट में, ठीक है, उसके प्राइसेस एडमिनिस्टर्ड हो जाते हैं. The prices gets administered and it is playing havoc with our system. For example, सबसे ज़्यादा MSP कौन सा प्रोडक्ट का है? Can anybody tell me which food product has the highest MSP? हर चीज़ का ना वो आता है, लिस्ट आता है, एमएसपी का लिस्ट आता है. इफ़ यू फॉलो पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, आप फॉलो करेंगे, इफ यू सी दैट हर एग्रीकल्चरल क्रॉपिंग सीजन के पहले ही गवर्नमेंट ना एमएसपी डिक्लेयर करती है कि ये एमएसपी है, ठीक है. इफ़ यू नोटिस, पंजाब के ज़्यादातर किसान 3 क्रॉप्स के पीछे सबसे ज़्यादा पड़े रहते हैं: शुगर केन, राइस एंड कॉटन. पंजाब में सबसे ज़्यादा किसान सिर्फ ये 3 चीज़ करते हैं, खेती, शुगर केन, राइस एंड कॉटन. और the thing that you should understand, and this is very, if I ask you what is the native crop of Punjab, पंजाब का native crop क्या है, वहाँ की असली crop क्या है, वहाँ पे पहले से क्या उगता था? Somebody is saying sir rice. No, my dear students, it's not. Rice is not native to Punjab. Punjab was not known for that. Sugarcane was not coming from Punjab. Punjab was known for wheat. Punjab was known for corn. Punjab was known for mustard. Yes, this is what Punjab was known for. Odisha राइस के लिए जाना जाता है, बंगाल राइस के लिए जाना जाता है, बिहार राइस के लिए जाना जाता है. These were the traditional areas of rice growing cultivations and crops. Can you understand what rice cropping has done to Punjab? For example, I'll tell you, हर ठंडी के टाइम पे
दिल्ली के आसपास का एरिया स्मॉग से भर जाता है। बस अगस्त तक के जाने की देरी होती है एंड आपके न्यूज़पेपर्स में एक न्यूज़ आना शुरू हो जाती है हर साल, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग, पैडी स्ट्रॉ बर्निंग, है ना? आती है ये न्यूज़, हर साल आता है। पैडी स्ट्रॉ यानी कि राइस वाला जो स्ट्रॉ होता है, जो धान को अलग करके आप जलाते हैं, दैट इज नॉट एन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जो पहले हुआ करता था, अब होता है। नंबर एक, पैडी रिक्वायर्स वाटर लॉक्ड रीजन, सबसे ज़्यादा वाटर लॉक्ड रीजन चाहिए। वाटर लॉक्ड मतलब पानी से भरा हुआ, कम से कम आधे फीट होनी चाहिए पानी। पंजाब इज नॉट नोन फॉर दैट। पंजाब में नदियाँ बहती थी, पंजाब हुआ करता था, लेकिन आज़ादी के बाद हमें पंजाब का जो पंजाब मिला उसमें से बहुत सारी नदियाँ जो है पाकिस्तान के साइड चली गई। ठीक है, वी हैव इंडस वाटर कमीशन जिसके अंदर हम लोग ने इंडस झेलम चेनाब को पाकिस्तान में दिया हुआ है, रावी ब्यास और सतलुज इंडिया में है, ऑल्दो वी कैन यूज इंडस झेलम चेनाब बट इन अ वेरी स्पेयरिंग वे जस्ट फॉर आवर सस्टेनेबल प्रोसेसेस, बट द रिवर्स दैट वी हैव इन पंजाब आर नॉट सुटेबल फॉर वाटर लॉगिंग बिकॉज डैम्स वहाँ पे बने हुए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बने हुए एंड दैट इज नॉट एट ऑल सुटेबल। ऑन द अदर साइड, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, आंध्र प्रदेश हो गया, हमारे साउथ के वाटर लॉक्ड रीजन्स हो गए, गोदावरी बेल्ट हो गया, कृष्णा बेल्ट हो गया, कावेरी बेल्ट हो गया, दे आर द ट्रेडिशनल राइस पॉकेट्स। बंगाल हो गया, बिहार हो गया, दे आर द ट्रेडिशनल राइस पॉकेट्स जहां पर वाटर लॉक्ड कंडीशंस होते हैं और आप राइस कल्टीवेट करते हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस इंसिस्टेंस ऑन राइस एंड ऑन शुगर केन फार्मिंग, जो दोनों ही वाटर इंटेंसिव है, दोनों में सबसे ज्यादा वाटर लगता है, दीज आर वाटर गजलर्स, दैट इज वाटर गजलिंग क्रॉप्स। हम ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करके राइस की खेती करते हैं एंड थैंक्स टू एमएसपी उससे पैडी बर्न भी हो रहा है और उससे हमारे वाटर डिप्लीशंस भी हो रहे हैं, बोथ। एंड दैट इज व्हाई in order to save that, we are now telling the farmers of Punjab to sow the rice plants bit after June only. जून के बाद में ही आप सो करिए राइस प्लांट्स। इनफैक्ट वी आर टेलिंग देम टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स जुलाई एंड अगस्त। व्हाई? बिकॉज हम चाहते हैं कि एक बार बारिश हो जाए। पंजाब में बारिश आते आते तो बहुत समय लगता है, बट उनका ये मानना है कि एक बार बारिश हो जाए तो शायद लोग ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट ना करेंगे। लेकिन पंजाब में आप जानते हैं बारिश आते आते, जून से जो बारिश शुरू होती है वो बारिश आते आते जुलाई अगस्त तक लग जाता है एंड देन पंजाब विटनेसेस व्हाट यू कॉल एज रेन्स, और तब तक ग्राउंड वाटर आप एक्सट्रैक्ट करते ही करते हैं। सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स। मोनोक्रॉपिंग जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को जन्म दे चुका है और कहीं ना कहीं आज भी कंटिन्यूएशन जो पॉलिसीज है, यू सॉ दैट इंडिया विटनेस्ड सच अ ह्यूज नंबर ऑफ फार्म बेस्ड एजिटेशंस, है ना? फार्मर्स का एजिटेशन हमने देखा जब 3 फार्म लॉज आए थे एंड दोस फार्म लॉज वर नॉट इवन स्पीकिंग एनीथिंग अबाउट एमएसपीज, बट यू सॉ दैट हाउ द होल इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज बेस्ड ऑन एमएसपी। द होल इकोनॉमी ऑफ पंजाब इज स्टिल ब्रीदिंग or eating the rewards, or if I would say negative or positive, that depends upon you, the thing of green revolution. So that is one such thing जो अभी तक legacy issue बना हुआ है for us. दूसरी चीज, ग्रीन रेवोल्यूशन इज सक्सेस ओनली व्हेन यू हैव लार्ज फार्म्स। जब आपके पास बड़े फार्म्स होंगे तभी जाके ग्रीन रेवोल्यूशन या ग्रीन रेवोल्यूशन के आइडिया सक्सेसफुल हुआ करते थे। सो इट डिस्प्लेस्ड फॉर स्मॉल फार्म्स और कमर्शियल फार्मिंग बहुत ज्यादा शुरू हुई। इंडिया में स्मॉल फार्म्स का प्रॉब्लम है, वी हैव प्रॉब्लम बिकॉज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ हेक्टर्स, पर कैपिटा और पर इंडिविजुअल अवेलेबिलिटी ऑफ हेक्टर्स इज जस्ट 1.15 हेक्टर्स पर कैपिटा। दैट मीन्स एक आदमी के पास ऑन एन एवरेज 1.15 हेक्टर्स ही अवेलेबल है। इनफैक्ट ये उससे भी स्मॉल है फिगर, बिकॉज ये 2015 का एग्रीकल्चरल सेंसस था, उसके बाद में एग्रीकल्चरल सेंसस नहीं हुआ है बिकॉज हमारा ही सेंसस नहीं हुआ है। सेंसस इज एन लॉन्ग ओवरड्यू इशू इन इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, व्हाटएवर यू कॉल इट। So now you can see that सेंसस जब आएगा तो ये फिगर और कम हो जाएगा। So it has displaced the small farmers. Small farmers are in huge number in India. इंडिया में स्मॉल फार्मर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। ठीक है सर, कोपरा क्रॉप हैज हाई एमएसपी। कोपरा इज ऑल्सो यस, बट कोपरा कितने लोग प्लांट कर रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है एमएसपी? ठीक है, लिंसीड सबसे ज़्यादा एमएसपी मिलता है, सोयाबीन में भी मिलता है। ठीक है, अब बट ये ज़्यादातर एरिया में होता नहीं है। ठीक है, सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। ओके, सो इट हैज क्रिएटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्मॉल फार्मर्स, रीजनल डिस्पैरिटीज, क्लास पोलराइजेशन, मतलब पेजेंट्स और कैपिटलिस्ट फार्मर्स के बीच में, स्मॉल फार्मर्स के बीच में, टेनेंट्स के बीच में क्लास सोशल पोलराइजेशन हो चुका है। अब बहुत जगह पे ऐसे फार्मर्स आपको मिलेंगे जो सिर्फ खेती करने एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं। पंजाब में खेती करने बिहार से मजदूर जाते हैं। ठीक है, एट द सोइंग सीजन, एट द कटिंग सीजन, एट द हार्वेस्टिंग सीजन्स, पीपल ऑफ पंजाब डोंट डू एग्रीकल्चरल लेबर नाउअडेज। ठीक है, दे हायर एग्रीकल्चरल लेबर एंड इट हैज क्रिएटेड अ हायरार्की ऑफ लेबर्स अक्रॉस इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन इज अ वन वेरी इंपॉर्टेंट इशू। लगभग पंजाब या इवन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लगभग सारे फील्ड्स हैव बिकम एसिडिक। दे आर नॉट अलाउड to remain fallow for a very long period of time. If geography is done, then I hope you know how a soil becomes acidic. Soil acidic कैसे बनता है? How does it become acidic? What is the nature of soil that is required for productivity? कौन सा nature होता है soil का जो हमें चाहिए? What nature of soil do we require for productivity? Geography is done, तो आपको पता होगा। Yes, please. Alkaline, right? Alkaline. We need alkaline. How does our soil become acidic? Can I say that waterlogging conditions coupled with excessive fertilizer use can make your soil acidic? Right? High content, yes please, high content of silica bhi hota hai, acidic bhi hota hai definitely. Okay, that makes your soil acidic. Waterlogging is there definitely. Okay, and because of that, when the fertilizers they run off the waters, the seep in etc, they all make the soil acidic. तो आपको हर साल ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया यूज करना पड़ता है। You have to keep on using urea. Without urea, you cannot imagine to do agriculture, right? इसलिए सबसे ज़्यादा सब्सिडी यूरिया के ऊपर। ठीक है, that creates problem. बिना यूरिया के, बिना इनपुट्स के आप कर ही नहीं सकते। When you keep on doing agriculture over a setup of a soil, एक soil के setup पे आप agriculture करते रहते हैं, it robs it from the natural utility, from its natural nutrient. ठीक है, अब उसको rejuvenate करने के लिए farming में एक system होता है which is to keep it fallow. आप fallow land fallow रखेंगे, 1 साल 1.5 साल उसे ऐसे ही छोड़ देंगे, right? That is not happening. That is
not at all possible nor affordable. Farmers can't afford to keep a patch of their soil, just like that. Increased water consumption सबसे ज़्यादा हो रहा है. आप देख सकते हैं ground water table keeps on decreasing in our northern plateaus, in our northern areas across the belt. It is not just a story of Punjab, it's a story of Punjab, Rajasthan, Delhi, Uttar Pradesh, along the axis of Ganga going towards Bihar and West Bengal, which is known as riverine states, जहाँ पर massive river systems flow करती हैं, वहाँ पर भी आप ground water level depletion की बात कर रहे हैं. So you can imagine that what is the extent of groundwater exploitation that we are moving on. हमें groundwater के बारे में कौन बताता है? How do we come across these facts? कैसे पता चलता है हमें groundwater के बारे में? एक central groundwater board है, ठीक है? When you follow PIB, जब आप PIB follow करते हैं, they keep on giving every 2 months, they keep on giving the status of water levels in India, dams का, groundwater का, ठीक है, riverine plateau का, सबका water level का status बताते रहते हैं. Although it is not as in your prelims, but understand आप post independence mains के लिए कर रहे हैं और ये सारे data mains में extremely usable है, ठीक है? Extremely usable means अगर आप ये data के साथ अपना आंसर लिखते हैं, so you can imagine that you will get some next level marks. I would recommend to you, all of you, to follow PIB, Press Information Bureau. इनकी हर दिन की लिस्टिंग आती है रात में 8 बजे, पूरे दिन जो भी हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्टिंग्स आती रहती हैं. सारी लिस्टिंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है? नॉट ऑल द लिस्टिंग्स आर इंपॉर्टेंट. जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जैसे आप मान लीजिए विजिटिंग हेड ऑफ स्टेट है, प्रेसिडेंट ने ग्रीटिंग दी है ईद की, दिवाली की, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? MOUs, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कमिंग अप फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. हर दिन कुछ ना कुछ आता रहता है नया से नया, ठीक है? UPSC कभी कभार उठा के उसमें से पूछ लेती है. फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है. अब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 7 से 8 प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं और जिस प्रोडक्ट्स का अपने हिसाब से वेटेज है, राइट, उसमें से कौन से प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा वेटेज है, कौन से प्रोडक्ट का सबसे कम वेटेज है, दिस वाज आस्क्ड. आपको कैसे पता चलेगा? न्यूज़ में इतनी डिटेल में नहीं आता है, बट व्हेन यू सी दोज लिस्टिंग्स, आप जब PIB की लिस्टिंग्स देखेंगे बहुत डिटेल में वो लोग लिखते हैं. हमें लगता है कि नॉट इंपॉर्टेंट, बट इट गेट्स इंपॉर्टेंट समटाइम्स और द अदर हियर एंड देयर. सो डेवलप दिस हैबिट ऑफ टेकिंग न्यूज़ फ्रॉम PIB डायरेक्टली, ठीक है? आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो तो पढ़िए ही, लेकिन रात को 8 बजे PIB पूरे दिन का लिस्टिंग देता है. एंड वेरी गुड थिंग इज दैट पूरे साल का लिस्टिंग PIB के वेबसाइट पर पड़ा रहता है. तो अगर आप मान लीजिए 1-2 दिन भूल गए तो पिछले दिन का भी आप एक साथ कर सकते हो. पिछले 1-2 महीने के आप पिछले 7-8 साल के लिस्टिंग्स एक साथ दिए हुए हैं, बट यू डोंट हैव टू डू दैट मच. प्रिपेयर 1-1.5 ईयर. इफ यू डू इट डेली, दैट विल हेल्प. एबल टू गेट, ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ सब्सिडीज के बारे में मैंने बात की ही आपसे, दैट सब्सिडीज आल्सो क्रिएटेड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. ओके, सो यस, दिस ईयर this becomes important. Green revolution becomes extremely important for you, ठीक है? Why? I've already told you. I think Norman Borlaug is also no more. Norman Borlaug, which I think I'm forgetting, he's also no more. So that becomes sometimes important. ठीक है? Anybody any doubt in this? Anybody any doubt in this? इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कुछ है नहीं, ठीक है? You don't have to deal anything in this historically. बस जस्ट है पोस्ट इंडिपेंडेंस तो हम कर रहे हैं, ठीक है? Anybody any doubt? Anybody any doubt? आगे बढ़ूं? Can we move on? If you don't have any doubt, then I have a doubt. Do you think that, मुझे इसी में लिखने दीजिए. Do you think that GM crops are an answer to Do you think that GM crops are an answer to the negative impacts of green revolution? सोनम आप पूछ रहे हैं सर प्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस से कितने क्वेश्चन आते हैं? 0 आते ही नहीं है, ठीक है? इस साल नहीं आया, पिछले साल नहीं आया, पिछले से पिछले एक साल एक बार क्वेश्चन आया, एक पॉलिटी से, वो भी हिस्ट्री वाला क्वेश्चन था. पार्शियली करेक्ट. सम ऑफ यू आर सेइंग सर यस, सर मे बी बिकॉज दे हैव देयर ओन इम्पैक्ट्स. यू कैन से दैट GM crops were a new category of agricultural revolution that we devised after the coming up of green revolution. So green revolution के आने और चले जाने में, see this is the process of 1966. अब 1966 में जो हुआ, भले ही आप पढ़ रहे हो, अभी बार-बार पढ़ोगे ही, लेकिन 1966 में जो हुआ वो 2023 में सक्सेस हो ये जरूरी नहीं है. We have seen that the negative impacts of green revolution has outgrown positive. ये उस जमाने के लिए जरूरी था, जो हुआ अपना पर्पस सॉल्व किया और चला गया. अब हमें कुछ ऐसा रेवोल्यूशन चाहिए which is at the same point of time, if we what is our game and what is our hope, that हम नहीं चाहते कि हमारे प्राइमरी सेक्टर में, यानी कि हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में, हम एग्रीकल्चरली डोमिनेंट इकोनॉमी नहीं होना चाहते. वी वांट लेस देन 50% हियर, 40-30% इज डिजायर्ड एज फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड, एंड GDP कम एरिया लेके, कम एम्प्लॉयमेंट देके ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करे. दैट इज व्हाट वी डिजायर. हम चाहते हैं कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग विच इज आवर सेकेंडरी सेक्टर और सर्विसेज विच इज आवर टर्शियरी सेक्टर, हम चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन इन दोनों सेक्टर से लें, राइट? सो आवर एम नाउ इज कम एरिया में इंटेंसिव एग्रीकल्चर हो, बिकॉज पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज डिक्रीजिंग. वी वांट less inputs, more output. That is the game over here that we are getting. GM crops, even till today, after being launched from early 1990s till today, we are very, very, very cautious in implementing it in what you call as food crops. हम GM crops को non-food crops या non-edible crops की category में ला चुके हैं. Example is cotton. But our experience has been disastrous in that. Cotton में हमने BT cotton variety शुरू की, और BT cotton variety में problem क्या हुआ? Have you been following environment? Environment हो गया?
एनवायरमेंट हो गया, एनवायरमेंट इज डन गाइस, नो, ठीक है। अगर नहीं हुआ है थोड़ा सा, ऑल्दो दिस इज नॉट माई मैंडेट, बट मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊंगा। एनवायरमेंट में एक ही जगह है जहां से आपको करंट अफेयर्स करना है, एंड दैट इज डाउन टू अर्थ। डू यू नो डाउन टू अर्थ? पता है आपको? डू यू नो डाउन टू अर्थ? ठीक है, इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, द बेस्ट वेबसाइट इनफैक्ट अवेलेबल फॉर योर एनवायरमेंट। वहाँ पर आप जाके बीटी के ऊपर एक साथ अगर आप बीटी टाइप करोगे सारे आर्टिकल्स एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। यू विल गेट टू नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बीटी क्रॉप्स, ठीक है, ओके। एनवायरमेंट के लिए प्लीज फॉलो डाउन टू अर्थ विदाउट वरिंग अबाउट एनीथिंग, दिस इज द बेस्ट सोर्स फॉर दैट। इनफैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए भी डेडिकेटेड आर्टिकल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। द बेस्ट थिंग टू डू फॉर एनवायरमेंट, आई वुड रादर सजेस्ट कि थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर लीजिए, ऑल्दो इज अ पार्ट ऑफ डायरेक्टली और साइंस एंड टेक एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट का डायरेक्टली ये पार्ट है। जब आप करेंगे तब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस चीज़ का, ओके। लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं इस पर, हर साल क्वेश्चन आते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा। पिछले साल प्रीलिम्स पे जीएम के ऊपर और एग्रीकल्चर के ऊपर, विच वाज रिलेटिंग टू ग्रीन रेवोल्यूशन, फ्रॉम योर सेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट वाले सेक्शन में, नॉट फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस सेक्शन में। पोस्ट इंडिपेंडेंस में तो आप ये देखते हैं कि क्या हुआ, बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स वर्किंग, 3-4-5-6 क्वेश्चंस आराम से पिछले 2-3 साल से वो लोग पूछ रहे थे। एग्रीकल्चर पे पता नहीं अचानक यूपीएससी काफी फिदा हो गई थी, इट स्टार्टेड आस्किंग यू, सो दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस सेक्टर पर्टिकुलरली, ठीक है। सो जस्ट गो थ्रू इट, सी इट इन डिटेल, तब जाके टॉपिक पूरा होता है, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स यूपीएससी में ऐसे होते हैं जो आपको इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से करना है, कुछ साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से करना है, सेम टॉपिक आपको एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से करना है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से करना है, ठीक है। सो दैट देन मेक्स योर टॉपिक अ होलसम टॉपिक, ठीक है। एग्रीकल्चर इज वन सच, सो गो थ्रू इट, इट्स इंपॉर्टेंट। हाँ, साइंस एंड टेक में जीएम के बारे में बताएंगे, या बता रहे होंगे, ठीक है, ओके। बट दीज आर द चैलेंजेस टू जीएम क्रॉप्स। अभी हम लोग ने मस्टर्ड के ऊपर खेती करना शुरू किया है, दीज आर कंट्रोल्ड experiments that is going on, and we have still not known any research. Okay, anyways, आगे बढ़ते हैं। What we have to do is the next topic. देखिए मैं इकोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक्स है वो नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लैंड, सॉरी 5-year पॉलिसीज, 5-year plans एक्सेट्रा, ऑल ऑफ दैट आई थिंक इज डन इन इकोनॉमिक्स, राइट? सो नो यूज टू जस्ट रिपीटिंग दैट, ओके। सो वी आर नॉट डूइंग दिस 5-year plan, 2nd-year plan, ठीक है। ये सब आपने किया हुआ है, ऑल इज डन। What is more important is land reforms, जो आपको कहीं नहीं कराया जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज डायरेक्टली द टॉपिक ऑफ हिस्ट्री। हालांकि ये ज्योग्राफी में भी आता है, फिर आपके पीपल्स ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में, बट लैंड रिफॉर्म्स इज एन इंपॉर्टेंट लेजिट पार्ट ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस। सो व्हेन डू यू फर्स्ट हियर अबाउट लैंड रिफॉर्म्स? आप लैंड रिफॉर्म्स के बारे में सबसे पहले कब पढ़ते हैं हिस्ट्री में? एनीबॉडी, एनी आइडिया? लास्ट में कौन से व्यक्ति हैं जो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप जानते हैं? Have you heard about भूदान आंदोलन? सुना है? कौन करते हैं? विनोबा भावे, right? He is one person from history that we see in post independence who goes on to do land reforms. And Jawaharlal Nehru also from the perspective of taking away rights from zamindars. एक चीज जवाहरलाल नेहरू के बारे में समझिए कि Jawaharlal Nehru was against zamindars and rajas in general because he thought that these are the relics of medieval India, कि medieval India में राजघरानाओं के जो relics थे, zamindars या चाहे वो royal families हो, they should not be continued in modern India, which is a democratic India. But the idea that land should be redistributed, कि land एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि इकोनॉमी में काम आ रही है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस में काम आ रही है, और अगर वो ऐसे लोगों के पास है जो खुद एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते हैं लेकिन लैंड जमा करके ओवर कॉन्सेंट्रेट करके एक फैमिली में रखते हैं, देन दिस इज नॉट द कंसेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस दैट वी वांटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो एक डिमांड उठी कि बहुत ज्यादा लैंड बहुत कम परिवारों के हाथ में एकत्रित है, कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड दिस इज अ लेगेसी इशू फ्रॉम मिडिवल इंडिया। ये मिडिवल इंडिया से एक लेगेसी इशू चल रहा है जिसे मॉडर्न इंडिया को सॉल्व करना चाहिए। एंड फ्रॉम देयर केम द डिमांड ऑफ लैंड रिफॉर्म्स एंड लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम रिच टू पुअर, ठीक है, कि ये सोशल जस्टिस होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लैंड ओनरशिप है, एक परिवार के पास बहुत ज्यादा लैंड है। अब एक परिवार के पास लैंड है, जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे खेती कर रहे होंगे, मे बी दे आर जस्ट सिटिंग आउट देयर और टेनेंट्स को लगा के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे थे, आप लोगों ने कुछ हिस्ट्री में फार्मर्स या फार्मिंग लीडर्स के नाम पढ़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल अवध किसान सभा या ऑल इंडिया किसान सभा, यू हैड पीपल लाइक गौरी शंकर मिश्रा, स्वामी शहजानंद, बाबा रामचंद्र। दीज वर सम ऑफ द लैंड, दीज वर सम ऑफ द फार्मिंग लीडर्स हु वर देयर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और लार्जर क्विट इंडिया मूवमेंट एज सच। और उस जमाने में जो फार्मिंग एजिटेशंस होते थे, दे वर मोस्टली रिलेटेड टू टैक्सेशंस, कि ब्रिटिशर्स टैक्स ले रहे हैं, ज्यादा टैक्स ले रहे हैं, फेमाइन के टाइम पे टैक्स ले रहे हैं, प्लेग के टाइम पे टैक्स ले रहे हैं, रिलेटेड टू रेवेन्यू। बट जैसे देश आजाद हुआ, वी न्यू दैट आज भी सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस कौन सा है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं लगता है? दैट इज फार्मिंग। आपको पता होगी ये बात कि हमारे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स जो हैं वो अपना प्रोफेशन फार्मर दिखाते हैं,
There have been many people like that. Farmer क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भैया खेती में इनकम टैक्स है नहीं. We have decided not to tax income coming from agriculture because of again our policy of our history of seeing our farmers suffer at the hands of Britishers. तो Britishers एक ज़माने में जैसे हमसे revenue collect करते थे, learning from that we decided not to tax the whole agricultural sector itself. Now because of that we solved the issue of taxation. हम लोग ने taxation का issue solve कर दिया था. But what about the ownership of such fields? ऐसे fields का ownership कहाँ जाएगा? Right? That issue is your land reform issue. So landlords extracting unfair rentals from tenants. So this was an issue of tenants. कि ज़्यादातर खेती जो है वो tenants कर रहे हैं, land owners नहीं कर रहे हैं, land owners के पास में सिर्फ land है, वो practice नहीं करते हैं. That became one of the major issue. Other thing was agricultural development भी नहीं हो रहा है. हमारे पास modern agricultural equipments नहीं है, primitive equipments में हम जी रहे हैं. अगर लोगों के पास है भी तो disorganized land ownership है, small fragmented plots हैं, low productivity है because of hired labor, and of course landless cultivation shifted at the will of landlords. This was called as absentee landlordism. मतलब लैंडलॉर्ड्स ही एब्सेंट है एग्रीकल्चरल के फील्ड से या एग्रीकल्चर के फील्ड से. मान लो लैंडलॉर्ड कलकत्ता में रहते हैं और उनका दुर्गापुर में बहुत बड़ा जमीन है. भाई पुश्तैनी जमीन है लेकिन the landlord is also not available, right? And he has left it at tenants and tenants are exploited. So all this problem was there at the time of the independence. And then you have number of recommendations coming from number of committees. बहुत सारे committees आने लगे. गोविंद बल्लभ पंत, do you know जीबी पंत? जीबी पंत का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है इस बेसिस पे. क्यों? क्योंकि हम पोस्ट इंडिपेंडेंस कर रहे हैं, so we should know जीबी पंत. हाँ, क्यों लिया जाता है? पता है दिल्ली में कृषि भवन है विच इज़ योर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर. आप कृषि भवन में जाएंगे ना तो सबसे बड़ी मूर्ति जो लगी है वो जीबी पंत की लगी है. डू यू नो कहाँ से थे जीबी पंत? यस प्लीज, नोबडी नोज जीबी पंत? यस राहुल, यू आर राइट. महाराष्ट्र से नहीं थे. फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं. हाँ, उत्तराखंड के भी लोग कहते हैं, लेकिन जब यूपी था तब उत्तराखंड नहीं था ना. अनडिवाइडेड यूपी. ओके, सो गोविंद वल्लभ पंत, जब आप जाएंगे मिनिस्ट्री में, हालांकि वो अब मिनिस्ट्री खत्म हो रही है लेकिन नई जो मिनिस्ट्री बन रही है वहाँ पे भी गोविंद वल्लभ पंत की सबसे बड़ी मूर्ति लगी है. जब आप एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में ऑफिसर बनकर जाएंगे तो मुझे याद करिएगा कि मैंने आपको गोविंद वल्लभ पंत का नाम बताया था. वेरी फर्स्ट फ्यू पीपल हु डिसाइडेड टू look for redistribution and give a number of consolidated reforms as far as agriculture was concerned. तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले रिफॉर्म्स लाने वाले जीबी पंत हुए. डिफेंस में सबसे पहले रिफॉर्म लाने वाले आफ्टर आवर सीरीज ऑफ डिबैकल्स, मतलब हमारे सीरीज ऑफ डिबैकल्स होने के बाद, पर्टिकुलरली इंडो चाइना वॉर होने के बाद, यशवंतराव चौहान, वाई चौहान became the person who became responsible for bringing reforms in defense sector, right? So सिर्फ नेहरू, सिर्फ गांधी, सिर्फ पटेल तक सीमित नहीं रखना है अपने आप को, आगे भी बढ़ना है आपको. ठीक है, सो यू शुड नो सम पीपल फ्रॉम पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. आई कैन, ऑल्दो इट इज नॉट आस्क्ड, पूछा नहीं जाएगा, नहीं पूछा जाता भी है, बट it helps because you are a UPSC student. If you use words, if you give words in arguments and somewhere in answers, yes, he was also the chief minister of UP, so it helps you to get a good hold. Okay, the first thing that GP Pant recommended and that caused a stir all over India, जो कि लागू सिर्फ 2 जगहों पर हुआ, सिर्फ 2 क्षेत्र में हुआ. ओरिजिनल आइडिया जीबी पंत साहब का था, ले लिया सीपीआई वालों ने, लेफ्ट वालों ने, और पूरे इंडिया में ये आइडिया फेल. सिर्फ 2 जगह पे इंडिया लागू चल रहा था ये आइडिया और आज भी सक्सेस है. द आइडिया ऑफ लैंड सीलिंग, कि लैंड सीलिंग करिए. ठीक है, कि एक आदमी के पास इतना अमाउंट से ज्यादा लैंड नहीं रहेगा, एक आदमी के ऊपर इससे ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं रहेगी. That the introduction of land ceiling was done at his behest and it started acquiring surplus land from for village cooperatives. तो बाकी का surplus land कि मान लीजिए कि अगर गवर्नमेंट ने सेटअप किया है and it was referred to the state governments कि अपने गवर्नमेंट में बताइए, अपने स्टेट्स में बताइए कितना लैंड सीलिंग होना चाहिए. तो मान लीजिए अगर बिहार में तय किया गया कि एक आदमी के ऊपर 10 एकड़ से ज्यादा की जमीन नहीं रहेगी, तो बाकी का जमीन क्या होगा? अगर एक आदमी के ऊपर 50 एकड़ है and government has fixed up 10 acres, so what about 40 acre surplus that will be going to village cooperatives. So सब जगह village cooperatives सेटअप किए गए और वहाँ पे लैंड पूलिंग शुरू हो गया. Only 2 states where it became successful was in West Bengal and the other in Kerala. इन दोनों जगह पे आज भी आप लेफ्ट की हुकूमत देखते हैं, राइट? यू ऑल्सो सी द इंपॉर्टेंट होल्डिंग पोजीशंस ऑफ द सीपीआई पार्टीज, राइट? सो यस, द आइडिया केम फ्रॉम देयर बट द आइडिया फिजल्ड इट आउट. एमएसपी वाले जो आइडियाज थे, हालांकि तब एमएसपी लॉन्च नहीं हुआ था, लेकिन रेम्यूनरेटिव प्राइस की सरकार आपको प्राइस देगी, सरकार आपको पैसा तय करके देगी कि आपका प्रोडक्ट का पैसा इतने में बिकना चाहिए. रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टार्टेड विद दिस कमिटी. स्मॉल होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करना शुरू किया गया कि अगर आपके पास आधा हेक्टर है, आपके बगल वाले के पास आधा हेक्टर है, आप मिलाकर कंसोलिडेट कर फार्मिंग कर सकते हैं. इसके भी प्रोविजन शुरू किए गए. इक्विटेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री स्टार्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दैट इट वाज ऑलमोस्ट टोल्ड दैट एग्रीकल्चर के लिए इंपोर्ट कोई प्रोडक्ट करना ज़्यादा आसान था, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए प्रोडक्ट इंपोर्ट करना टफ था. एग्रीकल्चरल इकोनॉमी स्टार्टेड बिकमिंग ईजियर एंड ईजियर फॉर पीपल टू डू. ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट कोऑपरेटिव्स लॉन्च किए गए और इसमें 2 कोऑपरेटिव्स का नाम सबसे ऊपर आता है. एक अमूल which was in the field of particularly milk production, the Operation Flood, and the other was IFFCO, that is in the cooperative of your fertilizers. So 2 cooperatives बड़े launch किए, हालांकि बहुत all over India बहुत सारे cooperatives launch किए गए, but these 2 became most famous out there.
ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो, प्रमोट पेजेंट प्रोप्राइटरशिप, लैंड टू द टिलर। बट एज आई टोल्ड यू, इट बिकेम सक्सेस इन ओनली 2 एरियाज। व्हाई? सिर्फ 2 जगहों पर ये सक्सेस रहा, बाकी की जगहों पर सक्सेस रहा ही नहीं। क्यों? एनीबडी एनी थॉट? एनीबडी एनी थॉट? क्यों? सर लोगों ने कॉपरेट नहीं किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, लोग कॉपरेट नहीं करेंगे। ठीक है। अब अगर आपको ये बोला जाए कि भैया आपके नाम पर 4 फ्लैट हैं, सबको फ्लैट नहीं मिल रहा है, तो लैंड सीलिंग के या फ्लैट सीलिंग के नाम पे गवर्नमेंट ये बोलेगी कि एक आदमी के ऊपर एक ही फ्लैट होगा, बाकी के फ्लैट चलो दे दो मेरे पास। ऑफ कोर्स विल यू सपोर्ट इट? ठीक है। सो दैट बिकेम अ पॉलिटिकल इशू। ठीक है। लैंड राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, द राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहला अगर, हालांकि व्हेन यू नो ना द राइट टू प्रॉपर्टी इज व्हाट, ये क्वेश्चन आया था, राइट? द राइट टू प्रॉपर्टी was once upon a time there in the list of fundamental rights, but it is not known anymore, right? Where is right to property? In which article it is now? कौन से आर्टिकल में? हाँ, ये क्वेश्चन आया था 300A. गुड. सो यस, सो आई होप यू नो द रीजन इज फ्रॉम दिस पॉलिटिक्स इटसेल्फ। यही इसी पॉलिटिक्स से वो रीजन है। ठीक है। सी पीपल स्टार्टेड फॉर्मिंग ट्रस्ट। उन्होंने बोला कि चलो भैया अगर इंडिविजुअल के नाम पर ना हो तो ट्रस्ट के नाम पे तो हो सकता है। ट्रस्ट में कितना भी प्रॉपर्टी हो सकता है। So, आज भी क्या होता है कि जिनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं वो इंडिविजुअल्स के नाम पे नहीं होती है, कॉर्पोरेट्स के नाम पे होती है, फंड्स के नाम पे होती है, ट्रस्ट के नाम पे होती है, एंड दैट इज हाउ दे आर एबल टू होल्ड द प्रॉपर्टी। एंड ट्रस्ट में सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, ऑल दैट स्टफ गोज ऑन। सो दैट इज व्हाई इट फिजल्ड आउट, बिकॉज मेनी पीपल थिंक दैट मोस्टली द रिच, द फार्मर, द लैंड होल्डर्स, द जमींदार्स, यही लोग गवर्नमेंट में थे, यही लोग जो है सरकार भी चला रहे थे, तो वो अपनी एरिया को क्यों जाने देंगे, वो अपने ट्रस्ट को क्यों जाने देंगे, एंड ऑल दैट। ठीक है। सो लैंड रिफॉर्म्स वाज एमिंग टू एड्रेस इनइक्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी, बट ये हुआ नहीं। ठीक है। आप जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। टेनेंसी रिफॉर्म्स, लैंड सीलिंग, कंसोलिडेशन, एनकरेजिंग ऑफ कोऑपरेटिव जॉइंट मार्केट। आज तक गवर्नमेंट कोऑपरेटिव्स को एनकरेज कर रही है, एफपीओस बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कम से कम 4 से 5 की मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के एफपीओ बनाने में लगे रहे हैं। देखा है आपने? फार्मर्स प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। स्टिल गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर मेकिंग ऑफ कोऑपरेटिव्स। पहले कोऑपरेटिव्स जो था, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, वो एग्रीकल्चर के साथ था, है ना? मेंस में भी आया क्वेश्चन, बिल्कुल सही। वो पहले एग्रीकल्चर के साथ था, अब क्या हो गया? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इज एन इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री नाउ, बट डोंट टेल मी दैट इट इज विद होम मिनिस्ट्री। ठीक है। अमित शाह इज आल्सो द होम मिनिस्टर एंड आल्सो द मिनिस्टर फॉर कोऑपरेटिव्स, बट वो होम मिनिस्ट्री के साथ में नहीं। ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स इंडिपेंडेंट हो गया है। ठीक है। दैट हैज बिकम इंडिपेंडेंट, एंड वन ऑफ द मेजर रीजन इज, एंड वन ऑफ द मेजर इश्यूज नाउ इज कि कोऑपरेटिव जो है, ऑल्दो कोऑपरेटिव्स आर अंडर द स्टेट सब्जेक्ट, लेकिन इंटर स्टेट कोऑपरेटिव इज अंडर सेंटर सब्जेक्ट। तो भैया आप स्टेट सब्जेक्ट में है या सेंटर में है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही चीज़ है कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्या करें जब वो सब्जेक्ट जो है वो स्टेट के पास में। सो वी कांट डू मच, बट इट इज देयर। बट एनीवेज, so that is the thing. Opposition to land reforms was there. We have already seen land was a property ceiling. इसको unjust माना जा रहा था. Many sectors were not taxed similarly. Small farmings जो है वो inefficient थी, not able to mechanize themselves. We have done all of this. Political arguments, resistance, dilution of reform strategy. आप यहाँ पे लिख सकते हैं by forming trusts. By forming trusts, that is how they diluted it. Okay. So that is the reason behind oppositions of land reforms. And then we had, जब कुछ नहीं कर पाए तो हम नाम के लिए जमींदारी abolition कर रहे थे. So we started abolishing जमींदारी system, etc. जमींदारी means the right of ownership along with the right to collect rent and all. तो obviously ये सब बेगारी वाला जो था, forced labor जो था बेगारी वाला, वो हम लोग ने abolish कर दिया, but इससे कुछ हो नहीं रहा था. Nothing was happening because until unless you do land reforms, zamindar will remain zamindar. Zamindar will be the highest land owner of that area. So that will definitely be there. So abolition started coming up of zamindari as a compensatory attempt for land sealing act. तो land sealing act जब fail हो गया तो zamindari आ रही है, compensatory attempt है, कुछ बड़ी चीज़ नहीं है. Basically who were zamindars during the time of Britishers? Zamindars were those people जिनका पास सबसे ज़्यादा लैंड हुआ करता था, but at the same point of time they took up the initiation to collect revenue for Britishers. वो Britishers के लिए revenue भी collect किया करते थे. That is it. तो हम लोग ने जमींदारी abolition में यही किया कि इनके revenue collecting rights को खत्म कर दिया. वो तो वैसे भी खत्म होने वाले थे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. The same thing that happened. So completion of abolition, जमींदारी abolition और abolition act was passed. 20 million tenants जो थे अब उनको लैंड होल्डर्स बताया गया. ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स दे दिए गए, यानी कि अगर आप कहीं पे टेनेंटशिप में 8 साल से 5 साल से ज़्यादा है तो आपको वो लैंड दे दिया जाएगा. बट ऐसा कुछ हो नहीं रहा था, एक्सेप्ट फॉर एज आई टोल्ड यू वेस्ट बंगाल एंड केरला. इन 2 जगहों पर काफ़ी पॉपुलर रही लैंड सीलिंग एक्ट और जमींदारी abolition, बाकी की जगहों पर पॉपुलर नहीं थी. ओके, सो एंड हियर दैट इज व्हाई यू हियर द भूदान मूवमेंट, बिकॉज भूदान मूवमेंट बिकेम important because Bhudan was encouraging landowners to voluntarily give land. जबरदस्ती नहीं था, voluntary act था, led by Vinoba Bhave. He was a Gandhian, so he thought that anything which is done compulsorily will not evoke, ठीक है, response. तो compulsory नहीं करेंगे, voluntary जिसको दान देना है वो दान दीजिए. That was Bhudan आंदोलन. ठीक है, fine. Yes please, anybody any doubt? Anybody any doubt? Bhudan was not land sealing. Bhudan was voluntary movement to give away land. Bhudan is again land redistribution ही आप बोल सकते हो उसको, but land distribution not done through any act. मतलब गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं है. Bhudan means अगर आपके पास जमीन है, एक्स्ट्रा जमीन है, आप चाहते हो कि आप दान दे दो, दे दीजिए, सिंपल. ओके, अगेन इट वाज आल्सो नॉट सक्सेसफुल. कोई अपनी जमीन का दान देने वाला था नहीं, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर बिग किंग्स एंड ऑल, जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारी जमीनें थी, उनको अपनी इमीडिएट जमीन बचानी थी.
they started giving grants. Okay, so except for big kings, there were nobody else who started. Land was also barren. Yes, barren lands were mostly given. ये भी होता था. Yes, barren lands were also given. That's true. ठीक है. Sir, from where Bhutan movement started? See, mostly it was carried on from the areas of Vidarbha. Sometimes it was carried on from the areas of the present day Narmada belt, and sometimes from Bihar sometimes. But it was not a particular area that it was started, but you can just say that it was started by Vinoba Bhave. That was the only thing. He did an all over India campaign to go from one place to the other. कोई ऐसा कोई particular जगह नहीं थी जहाँ से वो practice कर रहे थे. Fine. एक ऑपरेशन हुआ which is later on called as Operation Barga, which was बारगी को खत्म करने के लिए, यानी कि फोर्स लेबर को खत्म करने के लिए ऑपरेशन हो रहा था. Just you should know that it was launched particularly to free tenants from forced labor. ठीक है, so just know about that. ठीक है, लैंड रिफॉर्म मूवमेंट्स, शेयरक्रॉपर्स, भागीदार्स एक्सेट्रा, उनके नाम लिख के बेसिकली टेनेंट्स को फार्मिंग राइट्स के अलावा ओनरशिप राइट्स भी दी जानी चाहिए, उसके लिए रिफॉर्म हुआ था. सर, दीज लैंड रिफॉर्म्स आर डिस्क्रिमिनेटरी और नॉट? सी, इट डिपेंड्स अपॉन वेयर यू स्टैंड इन लाइफ, एज सिंपल एज दैट. अगर आप एक जमींदार के पहलू से देखेंगे, सो इट इज डिस्क्रिमिनेटरी, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप एक टेनेंट के पहलू से देखेंगे, तो इट इज डिस्क्रिमिनेटरी फॉर देम. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू हर्ड अबाउट मालाबार रिवोल्ट्स? आपने मालाबार रिवोल्ट्स के बारे में सुना है? हिस्ट्री आपने पढ़ी है मालाबार रिवोल्ट के बारे में, आपने सुना होगा. यस, द मोपला रिवोल्ट. हैव यू हर्ड अबाउट दैट? What was the issue in Moplas, the Mopla revolt? What was the issue with the Moplas? हिस्ट्री हो गई है ना. जन्मीज और एक होते थे कन्मीज. एक होता था जन्मीज और एक होते थे कन्मीज. जन्मीज जो जन्मदार्स होते थे, who were the land owners, they were the Hindu landlords, and one those who were कन्मीज, जो वहाँ के टेनेंट्स हुआ करते थे, those who were Muslims, particularly descendants of the Arab Muslim merchants. मोपलास happened for two times. दो बार मोपलास हुआ, एक 1830s में और एक 1921 में. When 1830s happened, कन्मीज और जन्मीज दोनों के बीच में यही लड़ाई थी that what should be my ownership to property, क्योंकि ब्रिटिशर्स had just introduced their what you call as द रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स इन साउथ ऑफ इंडिया. तो रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स उन्होंने शुरू कर दिया. बट जब 1921 में वापस हुआ, सो 1921 में तो कोई रैयतवाड़ी सेटलमेंट्स हो नहीं रहा था. इन 1830s रैयतवाड़ी सेटलमेंट वाज गोइंग ऑन. सो द कन्मीज वांटेड टू नो देयर स्टेटस, कि उनका स्टेटस है क्या, टेनेंट है कि टेनेंट से आगे भी बढ़कर है कुछ. फॉर एग्जांपल, क्या जन्मीज के पास में कन्मीज पहले से नहीं रहते थे? दे यूज्ड टू स्टे देयर बिफोर ट्रैवनकोर के ज़माने से, मार्तंड वर्मा के ज़माने से दे यूज्ड टू स्टे देयर. फ्रॉम द वोडियाज टाइम पीरियड दे हैड टू स्टे देयर, एंड दे कल्टिवेटेड फॉर द जन्मीज. बट व्हेन ब्रिटिशर्स स्टार्टेड कमिंग अप एंड गिविंग राइट्स टू द जमींदार्स, कि आपके ऊपर राइट है, जमींदार तो पहले से भी थे, कोई बाद में जाके जमींदार बने नहीं, लेकिन जब जन्मीज को राइट्स मिलने लगे, दैट ओके यू हैव अ राइट एंड यू हैव अ राइट कलेक्शन एंड द रेंट कलेक्शन, एंड रेंट को उठा के फिर आप हमें देंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, देन इट क्रिएटेड प्रॉब्लम. 1921 में दिस रिवोल्ट वाज प्योरली कम्युनल. It was not about economic relations. जो चीज पहले इकोनॉमिक रिलेशंस के ऊपर थी, वो बाद में पूरी की पूरी कम्युनल बन चुकी थी. That means the Kanmis were fighting with the Janmis on the lines of religion. Similarly, if you see the Santhal revolt, if you see the Pabna revolts, almost all of these peasant-based revolts were revolts between tenants and farmers. Sorry, tenants and zamindars, tenants and zamindars, tenants and zamindars. But the fact that the biggest zamindar during the time period of British India was Britishers themselves, because they were either controlling zamindars or they were removing zamindars or keeping zamindars. So basically everyone was tenant. अब ये issue इंडिपेंडेंट इंडिया में तो आके सॉल्व होनी चाहिए. नहीं, आपको नहीं लगता कि टेनेंट वर्सेस जमींदार का इशू ब्रिटिश इंडिया में सॉल्व नहीं हुआ, तो कम से कम इंडिपेंडेंट इंडिया में तो सॉल्व होना चाहिए? यस, यस और नो? इज इट सॉल्व टुडे? इज इट सॉल्व टुडे? ऑलमोस्ट. हाउ इज इट सॉल्व? दिस इशू गेव राइज टू, अब कोई खेती नहीं करता है, दैट इज हाउ इट इज सॉल्व, है ना. द बिगेस्ट डेप्टर्स इन इंडिया आर आवर फार्मर्स, है ना. दे आर द बिगेस्ट डेप्टर्स, एंड दैट इज हाउ दिस इशू is solved. A very interesting thing is that in rural India, the biggest workforce is with women. Women labor participation rate rural India में around 56% पहुंच गया. That means there are more women who are participating in the jobs market in rural India because of a simple fact that urban India has seen a high grade migration of men coming from different parts of India and going to the urban areas, going to the manufacturing unit and working there. So agriculture is now seeing a shift in the gender participation. I'll give you an example. How many women were trapped in the tunnel in that Uttarkashi tunnel collapse? How many women were trapped? Zero.
go and see where their wives were working. They were all working in their own fields at villages. So this is the situation of एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स. ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा आता रहता है, चलता रहेगा. ठीक है, नाउ वी हैव टू, अब ये सब लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दिस इज नॉट, दिस इज अ पार्ट ऑफ योर दिस थिंग. वी हैव टू नाउ लुक अप दलित मूवमेंट्स. ठीक है, तो थोड़ा सा दलित मूवमेंट्स, कास्ट मूवमेंट्स देखना है. ओके, दैट वी हैव टू सी, एंड सम पार्ट्स ऑफ इमरजेंसी. ठीक है, दैट वी हैव टू सी टुडे. लेट्स टेक अ ब्रेक. ब्रेक के बाद आते हैं एंड देन विल सी. यस प्लीज. आपकी क्लास 3 बजे तक है ना? लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आफ्टर दैट विल कम. टेक अ ब्रेक ऑफ 10-15 minutes.